Hi students, today we are going to learn about a rain. This is the first point of fourth class. So we see here in our India there are three seasons. So in that seasons, rainy season is most beautiful season in our country. So in that poem also we learn about rain. So first I read this poem, then I will explain. Number one, rain in the night. Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll take my watering pot and wash the pansies' faces. So here I complete this first poem's reading. Students, in that poem we see it has been raining throughout the night. Sometimes rain has been loud, sometimes soft, just like a song. We see this picture in first stanzas in a four lines. The poet says that the gutters will be like rivers and there will be lakes beside the road. It means when rainy season is began, that time everywhere we see waters. So poet says gutters will be rivers and lakes beside the road. The rising water will make their lazy kitten. Here we see a words kitty. Kitty means cat, kitten. So kitten wash his little dirty feet. And next stanzas we see her here. Rainwater drops like there is shining. That's why roses will wear like a diamonds by the kings. So here drops of rainwater on the roses will shine like diamonds and worn by the kings and queens at court. However, the pansies will get muddy because they are short plants. They are not long, or their height is very low. Their height is uh, very short. That's why they get muddy because of drop of water. Next, poet says the poet wishes to sail her boat the next day in a new wonderful places. But before that, she wanted to take her watering pot and wash the faces of the pansies because they're getting muddy. So here is some words are there. I read here. Gutters means we see here in village or in cities we see gutters. Gutter means channels at the edge of the street that carry off water. And pansies is flowers names. Pansies means uh, flowers with purple, yellow or white voluntary petals. The plants bearing such flowers. So
Here is two meanings. So here I hope you understood that poem. It is very short poem, but very beautiful poem we see here. हम देखते हैं कि यहाँ इस पोएम में जो पहला जो स्टांजा है, इसमें हम देखते हैं कि स्टांजा यानी जो पहली चार लाइन है उसमें यही बताया है कि जब बारिश होती है तो कभी बहुत तेज़ होती है, कभी बहुत धीमी होती है। यानी जो पोइट है उसको यही लगता है कि ये जो बारिश है एक सॉन्ग की तरह, एक गाना की तरह, एक म्यूज़िक की तरह उसको पता चलता है। इसलिए समटाइम्स लाउड, समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ सॉन्ग। उसको यही महसूस होता है कि जब बारिश होती है रात के समय में, स्पेशली हम जब सो जाते हैं तो हमारे छतों के ऊपर बारिश की जब बूंदें गिरती है तो हमको बहुत ही बढ़िया और अच्छा आवाज़ आता है। वो आवाज़ सुनकर हमको तो बहुत बढ़िया सा नींद आता है और एक गाने की तरह, वो म्यूज़िक की तरह हमको महसूस होता है, कभी तेज़ कभी धीमा। तो इसी कारण ये पोइट बताते हैं कि जस्ट लाइक अ सॉन्ग। नेक्स्ट स्टांजाज: There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty. Kitty means, हमने पहले ही बता दिया था कि kitty means cat हम बोलते हैं। Wash is little dirty feet. जो कैट है वो भी बारिश के कारण बाहर नहीं निकल रही है, और जब बाहर जो है, जो गटर जो है वो भी एक नदियों की तरह महसूस, हम देखते हैं कि नदियों की तरह वो हो रहा है, दिख रहा है। स्ट्रीट यानी रास्ता। स्ट्रीट जो है, रास्ते जो है, वो भी एक हम देखते हैं कि तालाब की तरह नज़र आते हैं। लेक्स यानी तालाब। और जो इसी कारण है कीटी जो है बाहर नहीं निकलती और अपना जो पैर जो है वो वॉश यानी साफ करती वो बैठी है, बाहर नहीं निकल रही वो। अगले स्टांजा में हम देखते हैं कि तीसरे स्टांजा में हम देखते हैं कि द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, बट द पेंसिस गेट मरी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गुलाब जो है वो भी एक राजा की तरह है। हम देखते हैं कि रोज़ यानी गुलाब फूलों का राजा मानते हैं हम, और इसी कारण जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें उस फूल के ऊपर गिरती है तो एक तरह से उन्होंने डायमंड पहन कर रखा है, जैसे राजा महाराजा दरबार में बैठते हैं। तो उसी प्रकार पोइट को भी वो महसूस हो सके, वो अपने इमेजिन करके वो बताता है कि द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, but the pansies get muddy because they are so short। देखते हैं कि जो पेंसिस जो फूल जो है वो बहुत ही, उसकी हाइट बहुत ही नीची और बहुत छोटी होती है, और इसी कारण बारिश की बूंदों के कारण मिट्टी उस फूलों के ऊपर आ गई है। कीचड़, मड़ी यानी कीचड़ उस फूलों के ऊपर आ गए और इसी कारण वो सब मड़ी हो गए हैं। यानी वो हम कह सकते हैं कि वो एक मिट्टी उसके फूलों के ऊपर आने के कारण हम गंदा नहीं बोल सकते, लेकिन आ, उसको हम कहेंगे कि वो कीचड़ से भरा हुआ वो फूल बन गए हैं, पेंसिस। लास्ट स्टांजा में पोइट्रेस कहती है कि I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll take my watering pot and wash the pansies' faces। तो अगले दिन वो पोइट्रेस कहती है कि मैं तो
बोट अभी सेलिंग करने जाऊंगा। सेल यानी हम कह सकते हैं कि उसको आ, जहाज नाव पानी में छोड़ना या चलाना। तो यहाँ पर हम बारिश के दिन जब आते हैं तो छोटे बच्चों में ये एक बहुत ही अलग का माहौल हो जाता है, और वो कागज़ के नाव बनाकर वो पानी में छोड़ते हैं। तो उसी कारण वो छोटी बच्ची जो है वो भी यही सोचती है कि आ, कागज़ के नाव बनाकर वो छोड़ेंगे, पर पहले अलग अलग जगह पर वो जाकर छोड़ेंगे करके वो बता रही है। पर पहले वो क्या करती है कि वाटरिंग बट फर्स्ट आई टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पेंसिल्स फेसेस। पर पहले वो बोलती है कि उससे पहले मेरा जो काम है कि जो बारिश के कारण जो पेंसिल्स जो है वो उसका जो फेस जो है वो उसको मैं पहले धो डालूंगी, उसके बाद ये सब काम मैं करूँगी। और इसी कारण यहाँ पर इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट दिस पोएम, एंड मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी, और ये ये मेरा पहला वीडियो है जो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ गलती होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगले जो वीडियो डालूँगा उसमें और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।